Good morning, students. This is History, Class 10th, Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe, and today is going to be your ninth class on this chapter. जुलाई 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, पहला एक्सप्रेशन था। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू होती है और 1832 को जो ग्रीस है वो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। 1830 से 1848 तक क्रांतियाँ होती हैं, लेकिन क्या जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनल फीलिंग है, वो केवल क्रांति से या बैटल से ही डेवलप होती है? ऐसा नहीं है। एक किसी स्थान का साहित्य, वहाँ की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, उससे भी जो राष्ट्रवाद है उसकी भावनाएं फैलती है, लोगों में एकता की भावना पनपती है। जो रोमांटिसिज्म है वो ऐसी ही एक मूवमेंट थी, एक आंदोलन था जिसे कल्चरल मूवमेंट कह सकते हैं। The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and emotional expression and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation. At nation, art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. इस तरह से जो साहित्य है जिसमें हम कला, कविता, कहानी, संगीत शामिल होता है, वो भी राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मदद करता है। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets greatly criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuition, and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past, as the basis of a nation. जो रोमांटिसिज्म है वो भावना को, फीलिंग को, इमोशंस को, इंट्यूशन को महत्व देता है। तर्क या रीज़न या विज्ञान या साइंस इसके विरोध में। जो रोमांटिसिज्म है उसके अनुसार जो साझी सामूहिक विरासत है, जो साझा सांस्कृतिक इतिहास है, वो भी राष्ट्र का आधार तैयार करने में सहायक होता है। Other romantics, such as the German philosopher Johann Gottfried Herder, claimed that the true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk. It was through folk songs, folk poetry, folk dances that the true spirit of nation, Volksgeist, was popularized. So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to protect the nation, to project the nation building. 1789 में जर्मनी 39 स्टेट में बटा हुआ था, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो जो रोमांटिक्स थे, जिनमें जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफर्ड भी थे, उनका मानना था कि जो जर्मन साहित्य है वो आम लोगों में बसता है, और आम लोग का मतलब जर्मन भाषा में डास वोक से है। उनका मानना था कि लोक गीत, लोक काव्य, लोक नृत्य राष्ट्रवाद की भावना को फैलाते हैं, और इस तरह से लोक संस्कृति की इन रचनाओं को इकट्ठा करना राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है।
The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia, and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, nationalist feelings were kept alive through music and language. Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. यहाँ हम समझेंगे कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज क्या होता है, यानी किसी देश की जो मदर टंग है, जो प्रादेशिक भाषा है, उसे वर्नैक्युलर लैंग्वेज कहा जाता है। उदाहरण के लिए पोलैंड की जो वर्नैक्युलर है वो पोलिश है। तो जो लोक साहित्य है, जो फोक लिटरेचर है, जो कल्चर है, जो कहानियाँ कविताएं हैं, वो न केवल प्राचीन राष्ट्रीय जो आत्मा है या प्राचीन राष्ट्रीय विरासत है उसको ही याद करने में सहायक नहीं है, बल्कि इससे आधुनिक राष्ट्रीय संदेश भी लोगों तक पहुंचता है। विशेषकर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, वो लोग जो फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है, उसके साहित्य से, उसके माध्यम से ही उनमें राष्ट्रता की भावना फैलती है। और यहाँ हम पोलैंड का उदाहरण देख सकते हैं, जो 18वीं शताब्दी के अंत में एक राष्ट्र नहीं था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने, लेकिन फिर भी पोलैंड में राष्ट्रीयता की फीलिंग विद्यमान थी। और जो वहाँ पर लोग थे, उदाहरण के लिए कैरोल कुरपिंस्की, उसने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने संगीत, ओपेरा और फोक डांस की माध्यम से उसको फैलाया। उदाहरण के लिए पोलोनाइज और मेजुरका को राष्ट्रीय सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. इस तरह से हम पाते हैं कि पोलैंड जिसका विभाजन कर दिया गया था रशिया ने, प्रूशिया ने, ऑस्ट्रिया ने, और जहाँ पर पोलैंड में रूस का अधिकार था, तो वहाँ पर रूस की सरकार ने पोलैंड वासियों पर ज़बरदस्ती उनको रशियन लैंग्वेज यूज़ करने को कहा। जब उन्होंने नहीं किया और क्रांति हुई, और उस क्रांति को 1831 में उस विद्रोह को रशियन गवर्नमेंट ने दबा दिया, लेकिन फिर भी पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को प्रयोग करते रहे। और जहाँ गिरजाघर में लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक जानकारी आपस में वितरित करते हैं, तो उन्होंने पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग वो करते रहे। परिणाम ये हुआ
कि बहुत सारे जो पादरी थे उनको रशियन गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया, साइबेरिया भेज दिया, उनको दंड दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने पोलिश भाषा का प्रयोग करना बंद नहीं किया और ये लैंग्वेज एक तरह से पोलैंड के लोगों की रशिया के विरुद्ध राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का परिणाम बनी। थैंक्स।